taken physically inside the center. In none of the writ petitions, my lord, there is any material to show that the question paper leaked in the sense that it traveled to other centers. Later on, my lordships, by sending some messages on Twitter, Instagram, etc., newspaper, a story, my lords, I mean, many groups joined. When question paper leaked, jammer did not work. Let me assume jammer did not work. Where is the evidence that anybody was having a mobile phone or any gadget having a SIM card which could have transmitted or received it? Then, my lordships, post examination, when BPSC took a firm stand that we will not cancel the selection test on any other center unless there is material to justify or material to demonstrate and prove that the purity of selection test has been compromised. Reports were called from every center. BPSC scrutinized it. BPSC evaluated every possible information which they could collect from their own machinery, including the complaints or, my lord, these messages. And then BPSC took a conscious decision. The entire magistrate had submitted a report to the commission regarding the activities at Bapu Examination Center. Annexed it in your counter. Yes, yes. Pappu Kumar. Yes. All right. And actually see to the counter. You'll just give the reference later. BPSC therefore took a conscious decision that it is in public interest, in the interest of, my lord, aspiring candidates, that entire selection test is not cancelled and it will only be reheld for the applicants appearing at Bapu Examination Center. And hence, a date for retest was fixed on 4th of January 2025. On 4th of January, my lordships, the total number of applicants who appeared, 5943. That is more than the candidates who sat, who... Less than. No, 5,900 and odd you said earlier. And this time it was 5943. 5943. 5943. 5,900. And the first time it was 5,900 and 5,900 odd we load, and later on the base snatched, it could not be how many further candidates had appeared. Since the total number of seat plan was for 12,012 candidates. All right. The entire examination all over the state, apart from these measures, has been videographed. If the court feels persuaded in any manner, even though there is no material, we can produce videographed selection test any moment. Bapu Sabhagar
was also having similar video facility. And it is in this context, my friends have taken to the report of district magistrate. My lordships, I am tempted to refer it again. Kindly come to the report of the district magistrate. If, my lord, on these grounds, the selection test is tinkered, I'm apprehensive that no selection body would be able to conduct any selection test. Disruptors are always there, my lordships. Howsoever stringent measures may be taken. Annexure C, page 52 of the counter affidavit. Yes. This is the covering letter. Next page, my lord, is detailed exhaustive report. I'll take little time, my lord, in placing this report because this is the foundation for the commission to take a decision apart from other materials. परीक्षा की तिथि को सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल ससमय अपने कर्तव्य पर उपस्थित थे। सभी परीक्षार्थियों को भी ससमय शांतिपूर्ण ढंग से प्रवेश करा दिया गया। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र भी ससमय करीब 10:55 बजे पूर्वाह्न में जोनल दंडाधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। विधिवत तरीके से प्रश्न पत्र का सील्ड बॉक्स खोलने के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक ए एवं बी के विभिन्न कमरों में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट का सील्ड पैकेट उपलब्ध कराया जाने लगा। प्रश्न पत्र वितरण में 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थी केंद्राधीक्षक एवं वीक्षकों के यह समझाने के बावजूद कि विलंब के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, हंगामा करने लगे। परीक्षार्थियों की आपत्ति इस बिंदु पर थी कि उनके ही कमरे में सील्ड बॉक्स को क्यों नहीं खोला गया। शोरगुल सुनकर अन्य कई कमरों के कुछ छात्र भी बाहर निकल आए और बुकलेट एवं उपस्थिति पत्रक छीनकर फाड़ने लगे। उनके द्वारा यह अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि परीक्षा रद्द हो गई है, जिस कारण कुछ अन्य परीक्षार्थी भी बाहर आ गए और बुकलेट एवं ओएमआर शीट लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर परिसर में एकत्रित हो गए। उन्हीं में से एक परीक्षार्थी ने ट्रंक से प्रश्न पत्र का पैकेट लूट लिया और हाथ में लहराते मुंह के साथ गेट तोड़कर बाहर निकल गया। परीक्षार्थियों ने कई कमरों में जाकर उपस्थित पत्रक आदि प्रपत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बावजूद उपस्थित दंडाधिकारी एवं पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित करते हुए शेष परीक्षा को संपन्न कराया गया। सूचना प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना भी केंद्र पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया, अन्यथा भारी तोड़फोड़ एवं आगजनी कर परीक्षा नहीं होने दिया जाता। नियंत्रित परिस्थिति में कुल 5,671 परीक्षार्थी परीक्षा को पूरा किया। परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब निम्न कारणों से हुआ। चूंकि परीक्षा भूतल के साथ साथ सभी 5 तल्लों पर आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थी भाग ले रहे थे। विधिवत तरीके से प्रश्न पत्र का सील बॉक्स खोलने के पश्चात क्रमवार तरीके से अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाने लगा। प्रत्येक हॉल में 273 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी एवं प्रत्येक स्टील बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसे 16 सील्ड टीईएस बैग टेम्पर एविडेंस सिक्योरिटी बैग में रखा गया था। प्रत्येक टीईएस बैग में 12 प्रश्न पत्र थे। अतः एक स्टील बॉक्स में रखे गए टीईएस बैग को दूसरे परीक्षा हॉल में शेयर करना था, ताकि प्रश्न पत्रों को क्रमवार तरीके से परीक्षा के नियमानुसार अभ्यर्थियों को बांटा जा सके। टीईएस बैग को एक हॉल से दूसरे हॉल में ले जाने तथा क्रमबद्ध रूप से प्रश्न पत्र वितरित करते हुए ऊपर तक पहुंचने में विलंब हुआ। परीक्षार्थियों द्वारा उनके ही कमरे में सील्ड बॉक्स नहीं खोले जाने पर आपत्ति की जाने लगी तथा प्रश्न पत्र वितरण को बाधित किया गया। यद्यपि केंद्राधीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि सील्ड बॉक्स
किसी एक परीक्षा में ही नियमानुसार खोला गया है और विलंब के लिए उन्हें अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु परीक्षार्थी हंगामा करने पर आतुर थे। संपूर्णतया ऐसा प्रतीत होता है कि देर से प्रश्न पत्र बुकलेट वितरण का बहाना बनाते हुए कुछ परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा रद्द करवाने की साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से अफवाह फैलाकर परीक्षा को बाधित करने की नियत से बहिष्कार को अंजाम दिया गया। परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा केंद्र से बाहर बुकलेट, प्रश्न पत्र एवं OMR सीट आदि नहीं लेकर जाना था, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने ऐसा कृत्य करते हुए परीक्षा की प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास किया। अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा कक्ष में हंगामे के दौरान एक विक्षक श्री राम इकबाल सिंह को दिल का दौरा पड़ा, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन परीक्षा परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर ओल्ड बाईपास को अवांछित तत्वों के द्वारा जाम करने के कारण उन्हें अस्पताल पहुंचाने में विलंब हुआ। प्राप्त सूचना अनुसार उक्त शिक्षक की मृत्यु भी हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में सम्मिलित थे एवं उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन में बाहर भी मौजूद था, जो कि बाहर से हंगामा करने पर आतुर थे। कुछ अभ्यर्थियों ने केंद्राधीक्षक को घेर कर परीक्षा निरस्त होने की घोषणा करने हेतु दबाव बनाया, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त कुछ परीक्षार्थी तोड़-फोड़ एवं अन्य प्रकार से व्यवधान करने पर आतुर थे, ताकि किसी तरह परीक्षा निरस्त हो। अतः जिम्मेदार परीक्षार्थियों एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है। इस प्रकरण में कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका की भी जांच की आवश्यकता है। Then my lordship's is conclusion. Now my lord will kindly come to the decision of the Public Service Commission, which is on page 58. This has not been shown to my lords up till now. None of the petitioners have, my lord, shown this document. लोक सेवा आयोग में दिनांक 16/12/24 को 12 बजे मध्याह्न में हुए आयोग पीठ की पूर्ण पीठ की 46वीं बैठक की कार्यवाही। दिनांक इतना को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पटना जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्र इतना बापू परीक्षा परिसर मौर्य विहार कॉलोनी कुम्हरार में बाधित हुई परीक्षा के संबंध में आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आयोग के निर्णय के संबंध में उपर्युक्त एतद विषय के संबंध में आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/12/24 को राज्य के 36 जिलों में अवस्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत पटना जिला के एक परीक्षा केंद्र संख्या इतना बापू परीक्षा परिषद मौर्य विहार कॉलोनी कुम्हरार पटना पर कुछ परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र की सील वितरण से पहले से खुली होने और वितरण के बाद विलंब से प्रारंभ होने की बात कहकर हंगामा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई एवं परीक्षा बाधित की गई। जिलाधिकारी पटना द्वारा इतना को तत्संबंधी सूचना दिए जाने के बाद आयोग कार्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा 15/12/24 को विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित प्रतिवेदन में प्रश्न पत्र वितरण में 10 से 15 मिनट विलंब होने की बात बताई गई है। साथ ही केंद्राधीक्षक एवं शिक्षकों द्वारा धैर्य पूर्वक बार-बार परीक्षा में भाग लेने हेतु अनुरोध किए जाने एवं विलंब के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की बात कहने के बावजूद भी कुछ परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र के TES बैग पूर्व से ही फटे होने की बात कहकर प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी अफवाह फैलाए जाने के कारण अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी परीक्षा में भाग लेने से मना करने, बुकलेट एवं उपस्थिति पत्रक फाड़ने की बात कही गई। जिलाधिकारी के प्रतिवेदन में परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब के लिए निम्न कारणों का उल्लेख किया गया है। परीक्षा भूतल के साथ साथ सभी 5 स्थलों पर आयोजित की गई थी। प्रत्येक हॉल में इतने अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। प्रत्येक स्टील बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसके कारण प्रश्न पत्रों को एक हॉल से दूसरे हॉल में शेयर करना था। इसके कारण प्रश्न पत्रों के TES बैग को एक हॉल से दूसरे हॉल में ले जाने तथा क्रमबद्ध रूप से वितरित करते हुए ऊपर तक पहुंचने में विलंब हुआ। परीक्षार्थियों द्वारा उनके ही कमरे में सील बॉक्स नहीं खोले जाने पर आपत्ति की जाने लगी। प्रश्न पत्र वितरण को भी बाधित किया गया। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा बाधित होने के फैक्ट फाइंडिंग के लिए आयोग स्तर पर भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी पटना द्वारा आयोग को सौंपे रिपोर्ट
एवं बापू परीक्षा परिसर में लगे सीसीटीवी का वीडियो क्लिप को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के प्रारंभ में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा को बाधित किया गया एवं अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका गया। इसके बावजूद बहुतायत संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कर OMR आंसर शीट को समर्पित किया गया। पूर्ण पीठ को अवगत कराया गया कि वर्तमान मामला 27/12/2020 को आयोजित 66वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के औरंगाबाद जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्र संख्या 660 में बाधित हुई परीक्षा के कारणों से हूबहू मिलता है। उस वक्त भी जिला पदाधिकारी औरंगाबाद ने विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया था कि परीक्षा केंद्र 660 पर सील खुला होने तथा परीक्षा 12:30 बजे अपराह्न प्रारंभ होने की शिकायत करते हुए कुछ परीक्षार्थियों ने अफवाह फैलाकर परीक्षा को बाधित किया, जिसके कारण अन्य परीक्षार्थी भी परीक्षा में भाग नहीं ले सके। उस वक्त आयोग ने 2 वरीय उप सचिव की फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया गया, जिसने स्थलीय जांच कर अपना प्रतिवेदन दिया, जिसकी विस्तृत जानकारी आयोग को आयोजित पूर्ण पीठ की बैठक की कार्रवाई में दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि कथित रूप से सामग्री बांटने में विलंब, सील खुलने रहने की अफवाह फैलाकर कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा शोर मचाकर परीक्षा को बाधित किया गया और अन्य छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, जिलाधिकारी पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन तथा आयोग स्तर पर की गई समीक्षा क्रम में निम्नांकित स्थिति उभरती है। बापू सभा परीक्षा परिषद केंद्र पटना पर वीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक, अन्य स्टाफ इत्यादि की प्रतिनियुक्ति तथा सीसीटीवी की व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई थी। केंद्र पर मजदूर इत्यादि व्यवस्था करने की जिम्मेवारी भी BSEB की थी। यह केंद्र पूर्ण रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में था। आयोग के किसी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई थी, अर्थात उस केंद्र पर सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन करने की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की थी। जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए रिपोर्ट, बापू परीक्षा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, दिग्वीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक और केंद्राधीक्षक से हुए विमर्श इत्यादि स्पष्ट होता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त केंद्र पर पर्याप्त मानव संसाधन, वीक्षक, बक्सा पहुंचाने के लिए मजदूर इत्यादि की कमी थी, जिसके कारण सभी कक्ष में समय पर प्रश्न पत्र के बक्से पहुंचाने में विलंब हुआ और कुछ परीक्षार्थियों को उपद्रव करने का बहाना मिला। ऐसा केंद्र जिस पर 12,000 की संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा ली जानी थी, उस केंद्र पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा आयोजन की आवश्यक अग्रिम तैयारियां एवं रिहर्सल किया जाना था, लेकिन इस संबंध में BSEB के पदाधिकारियों द्वारा गंभीर प्रशासनिक चूक हुई है। यह हैरानी की बात है कि उप केंद्र से 10 स्टील ट्रंक जो पूरी तरह सुरक्षित और सील थे और जिन्हें खोला तक नहीं गया था, को भी दिनांक 13/12/24 की संध्या आयोग कार्यालय में वापस किया गया। स्पष्ट रूप से बापू परीक्षा परिसर केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी 1920 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पहुंचाने में निष्फल रहे हैं। यह इस केंद्र पर हुई गंभीर प्रशासनिक चूक एवं अव्यवस्था को इंगित करता है। हंगामा होने के बावजूद बापू परीक्षा परिषद केंद्र के ब्लॉक A, ब्लॉक B में करीब 5300 परीक्षार्थी परीक्षा पूर्ण कर OMR उत्तर पुस्तिका लौटा सके, लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थी उपद्रवी तत्वों द्वारा रोकने के कारण तथा प्रश्न पत्र विलंब से नहीं मिलने के कारण परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। साथ ही विभिन्न न्यूज चैनलों पर चलाए जा रहे वीडियो क्लिपों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ परीक्षार्थियों द्वारा एक दूसरे को मदद करते हुए प्रश्नों को हल किया जा रहा था। इससे भी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई। एकीकृत इतना परीक्षा राज्य के 915 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें बापू परीक्षा परिषद केंद्र को छोड़कर राज्य के शेष 911 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से बिना किसी घटना के पूर्ण होने की सूचना केंद्राधीक्षकों, जिला पदाधिकारियों द्वारा दी गई। वैसी स्थिति में आयोग कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के कारण राज्य के 4,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा के लिए बाध्य करना उचित नहीं समझता है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इतना प्रतियोगिता परीक्षा औरंगाबाद जिला में अवस्थित इतना पर उत्पन्न समान परिस्थिति एवं आयोग द्वारा उस केंद्र पर पुनर्परीक्षा कराने के समान निर्णय के आलोक में बापू परीक्षा केंद्र पर भी पुनर्परीक्षा लेने का निर्णय उचित एवं न्याय संगत होगा। सभी उपलब्ध साक्ष्य आयोग की परीक्षा की सूचिता बनाए रखने और परीक्षार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। So my lordship, the commission considered every aspect of the matter and then it decided to have a re-examination on that particular center. And accordingly, the re-examination was held on 4th of January 2025. The
test of preliminary result has been published, and in accordance with my lordship's the requisite statutory prescription, 10 times of the vacancy. My lordship's candidate who have been successful in. When did you publish the result? The result was published on 23/3. There is a 23/1/25. And how many candidates have passed? My lordship, the total. There are two aspects which have to be borne in mind. One is cutoff date, and then, my lord, that cutoff gets restricted if 10 times. If That's a, yes. How many persons, 10 times, after calculating 10 times, how many persons you have declared passed? 21,583. They have been found, my lord, eligible for Writing the mains. writing the mains. The total candidates who have, my lord, secured qualifying marks are my friend, my lord, instructs that 2,03,000 and odd. They have not secured, my lord, the minimum qualifying marks. No, we are not concerned with that. We are not concerned with that. You have passed 21,583. 83. They definitely were above the cutoff marks, Yes. the minimum marks. Yes, and within Within 10 10 times. 10. Within 10 times. Yes. My lordships, the commission has filed an exhaustive counter affidavit dealing with every aspect. In this case only. Yes, in this case. And other cases also. So one counter affidavit we can Will get. suffice, one counter. Counter affidavit and supplementary affidavit, both. Supplementary affidavit, in fact, my lordships will find